We will start with the topic carbon and its compounds. We will be looking into activities, some basics and some explanations. So let us start with an activity. You should just differentiate the things around you into metals, clay and other things. Okay, that is things made up of metals, which will include some utensils, cooking pans, etc. and things made up of clay, in essence mud or such things, bowls, test tubes, mugs, cooking pans, etc. and the other things will include water, clothes, bag, furniture, soaps and detergents. Okay, so one thing you will notice from this activity that the food, clothes, books, etc., these compounds are carbon based compounds, and also all the living structures around us are carbon based. So carbon is one of the versatile element, and hence we have this element for studying. Some basic properties of carbon: they have low melting point, which is less than 300 degrees Celsius. They have covalent bonds which are formed by sharing of valence electrons, as you can see in this diagram over here, that there are 4 electrons present in its outermost orbit, right? So it requires 4 more electrons to complete its octet. So what carbon does, it does not completely gives this 4 electrons or takes another 4 electrons, rather it shares the electrons with another carbon compound or another elements to form covalent bonds. Okay, next property is they are bad conductors of electricity. Of course it is a non-metal, but there is an exception, that is graphite, which is used in pencils, etc. They act as a good conductor. This is the atomic symbol, this is atomic mass, atomic number and valency. Now the covalent bond formation. Carbon cannot gain 4 electrons. What will happen if it gains the 4 electrons? It will become negative, electronegative, and if it becomes electronegative, it will be tough for 6 protons to hold 10 electrons. Okay, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The 6 protons cannot hold the weight of the 6 electrons. So the atom will be unstable, and for that it does not gain 4 electrons to be stable. Whereas it also cannot give away the 4 electrons. If it gives away the 4 electrons, then it will become electropositive, and because it would require a large amount of energy to remove the 4 electrons, it cannot be electropositive. Okay, hence it will become unstable in that case also. So it undergoes covalent bonding. Okay, here we can see how the covalent bonds are formed. For one more electron I forgot to add. Sharing of electrons. What does carbon do? It requires 4 more electrons. If you look at this figure, hydrogen, which has the atomic number 1, also requires 1 more electron to complete its K shell. So what does it do? It will form sharing bonds with each of the carbon electron. 4 different hydrogens with each of the carbon electron will share 1 bond. Single bond formation will take place. Like this, both the elements will obtain stable state by sharing such valence electrons and forming covalent compounds. Okay. Now the covalent bonds are not just of single bonds. Okay, they might be of double or triple bonds as well. For example, we always write the symbol of hydrogen as H2, or of oxygen as O2, or of nitrogen as N2. Why is it so? Because hydrogen requires 1 more electron, as we know. So it forms bond with another hydrogen element and makes it single bond. Like this, both the hydrogens are stable. Same is the case with oxygen as well. Oxygen has 6 electrons in its L shell and it requires 2 more electrons. So what does it do? It forms 2 covalent bonds with another oxygen molecule and gets stable, right? Same is the case with nitrogen. It has 5 electrons in its outermost orbit and it requires 3 more electrons to be stable. So it simply forms triple bond with another nitrogen molecules and becomes stable. This is nothing but covalent bonds, double, triple and single bonds.
Now there is also the electron dot structure of carbon compounds. Electron dot, in a sense, the electrons, valence electrons of one element is represented with the cross and another with the dot. For example, I'll draw and show you here. If I want to draw the electron dot configuration of the compound methane, which has 1 carbon and 4 hydrogen, first of all draw carbon in center, then draw the cross, that is representing the 4 valence electrons of this carbon compound. Okay, I'll just change the color. Okay, now draw the hydrogen atoms. Each electron shares 1 bond with 1 electron of hydrogen, and we will represent the electrons of hydrogen with a dot. Got it? So this is overall dot and cross. Now how to form a circle? Okay, so here I'll again take the color. So we know that carbon needs 4 more electrons to complete its octet. So what I will do, I'll just simply count 8 electrons like this: 1 2 3 4 5 6 7 8, and just complete this circle, which is represented here with this orange circle. And later, as hydrogen requires 1 electron, I will draw the circle like this, that is hydrogen's electron and carbon's electron, only with each hydrogen. ओके, तो ये बन गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर. सो लाइकवाइज हम इथेन का भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाना है, दैट इज़ विद द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और बाकी के जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, वो हमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग दिखाना है. लाइकवाइज वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईच कंपाउंड. क्लियर? या. Now the next concept is saturated and unsaturated hydrocarbons. So simply compounds which have single bond between 2 carbons are called alkanes or saturated compounds. You can see here इनके नाम में ही लिखा है ANES, ANE compounds जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम अल्केन्स यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, और इनके हम नाम के आगे लगाते हैं ANE. कंपैरेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एक तो डबल बॉन्ड रहते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं. अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो हम उनके नाम के आगे लगाते हैं ENE यानी कि अल्कीन्स, और YNE जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं तो उनके नाम के आगे हम लगाते हैं YNE, अल्काइंस. ओके, तो ये रहता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. कंपाउंड्स formed by sharing just a single bond are called saturated compounds, while compound formed by sharing of double or triple bonds are called unsaturated. This is basic. और अब हमें यहाँ पे दिया गया है मीथेन की फैमिली, मीथेन यानी कि अल्केन की फैमिली. ओके, जहाँ पे ये हम सैचुरेटेड जो देख रहे थे अल्केन्स, इसकी फैमिली यहाँ पे दी गई है. और लाइकवाइज अल्कीन्स और अल्काइंस की भी रहती है, जहाँ पे फिर ये ANE जस्ट रिप्लेस होता है ENE के साथ, और बॉन्ड्स भी डबल हो जाते हैं. यानी कि अगर इथेन है हमारा ये विथ सिंगल बॉन्ड, ऐसा रहता है स्ट्रक्चर इथेन का, हमने देखा था लास्ट इसमें, देखिए आप देख सकते हो. वही इथीन का क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन्स के नंबर कम हो जाते हैं. सो यहाँ पे फॉर्मूला में कैसा आएगा, तो इथीन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन्स आएंगे 4, राइट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड. सो हमारा फॉर्मूला रहेगा C2H4, जो कि हमारे इथेन में थे C2H6. ओके, यहाँ पे बॉन्ड कार्बन कार्बन के वजह से हाइड्रोजन्स के नंबर चेंज हो सकते हैं, चेंज यानी कि रिड्यूस हो सकते हैं इथीन में, और सिमिलरली इथाइन में भी चेंज हो जाते हैं. यानी कि अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 more हाइड्रोजन विल बी गोइंग अवे, सो हाइड्रोजन्स नंबर विल अगेन डिक्रीज बाय 2. समझ में आ गया? हमें एक कंसेप्ट याद में रखना है, वो है कि कार्बन जब हम ऐसे लिंक करते हैं
तब हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्या पूरी, ये हमें देखना है। यानी कि ये कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे गई, मतलब ये इस कार्बन के साथ गई, तो इसके बाकी रह गए 3, तो यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन्स। अब इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, तो इसके पास सिर्फ रह गए 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आएंगे। सिमिलरली विद दिस, यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन्स। समझे आप? ओके। वही अगर ये डबल बॉन्ड हो गया 3 कार्बन्स में भी, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे नहीं बन सकता, मतलब बन भी सकता है पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने डबल बॉन्ड दे दिया, फिर इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 वैलेंसी पूरी हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स। वेराज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन्स, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। वेराज इस कार्बन के लिए सिर्फ 1 की वैलेंसी पूरी हो गई है, तो यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन्स। समझ में आ गए? ऐसे हाइड्रोजन्स के नंबर्स घटते जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो फिर ये हाइड्रोजन हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ये फिर हटा देंगे। सिमिलरली विद दिस, काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4, ये बॉन्ड की भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ऐसे हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड्स घटाते रहना है, जैसे हम कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इंक्रीज़ करते हैं। ओके, ये आपको टेबल लर्न ही करना है। आई गेस CBSE वालों के लिए ये हेक्सेन तक होगा या फिर F10 तक, बट आपको D10 तक पूरे लर्न होने चाहिए। ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज़ दैट हमारे स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, मतलब मैं जो ये निकाल रही थी ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स निकाल रही थी कार्बन कंपाउंड्स के, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो उसमें रहता है लीनियर स्ट्रक्चर, जो कि सिंपली हमें पहले तो कार्बन्स ऐसे अरेंज करने, फिर इनके बीच में हमें बॉन्डिंग करनी है, और फिर रिमेनिंग प्लेसेस हमें हाइड्रोजन के साथ फिलअप करनी है। आपको ये फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। ये होता है हमारा लीनियर स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ओके, फिर बाद में आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच यानी क्या होता है, जब हम कार्बन कार्बन ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं और बीच में ही हम एक ब्रांच निकाले उसकी, राइट, या फिर इधर बीच में ही हम ऐसे अगर ब्रांच निकाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 स्ट्रक्चर्स निकाले। ये स्ट्रक्चर है 4 कार्बन कंपाउंड नोन एज ब्यूटेन। 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ओके, तो जब ये लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब लाइन में 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो, C4 है और H आपको मिलेंगे 10, राइट। वही मैं जब ब्रांच कर रही हूँ, मतलब अब देखिए 2 कार्बन से इसके आगे का कार्बन मैंने ऐसे नीचे ब्रांच किया है और फिर उसके साथ अलग। ओके, आप ऐसे ही नहीं कैसे भी कर सकते हो, यानी कि ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो ब्रांच। आपका जैसे मन करे वैसा आप कर सकते हो ब्रांचिंग, उसका कोई इशू नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, पर जस्ट अ मिनट, मैं इरेज कर देती हूँ। या ऐसा भी कर सकते हो, पर वो ब्रांच्ड होना चाहिए। और ब्रांच के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रिमेनिंग वैलेंसीज जो है, ब्रांच करने के बाद भी हमें देखना है कि हमारे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है क्या। अगर नहीं हुई हो तो फिर हमें वहाँ पे हाइड्रोजन्स ऐड करते जाना है। लाइक अब इधर अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये C है, इसका एक बॉन्ड इस C से है और रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन्स को मैंने दिए हैं। सिमिलरली विद दिस C, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स के साथ है। सिमिलर विद दिस एंड सिमिलर विद दिस। हमारा स्ट्रक्चर होने के बाद हमें सिर्फ रीचेक करना है कि हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं। और अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है इससे, पर फॉर्मूला तो सेम आता है। लाइक C4H, अगर आप काउंट करोगे तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So structural formula is same but structures are different. तो इस कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। दैट इज द कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और ये एग्जाम्पल है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ओके, नाम के आगे आइसो लगाना है जब ऐसे ब्रांच आप निकालोगे तब। क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट इज रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग क्या रहती है कि जब कार्बन हम ऐसे लाइन के अलावा और ब्रांच के अलावा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जब ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और रिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, आपको बेस्ट एग्जाम्पल है साइक्लिक कंपाउंड का, वो है साइक्लोहेक्सेन। हाँ, और जब साइक्लिक होते हैं तो उसके नाम के आगे हम लगाते हैं साइक्लो। उसमें ही जब आप डबल बॉन्ड्स भी ऐड कर देते हो तो उसको हम नाम है बेंजीन। मतलब जब साइक्लोहेक्सेन रहता है और उसमें डबल बॉन्ड्स रहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तभी उसका नाम बनता है बेंजीन। ये बेंजीनिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके बुक में शायद से नहीं दिया होगा पर एग्जाम के लिए पूछते हैं। बेंजीन इज़ वन ऑफ द अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स। और अगर आप देखोगे लीनियर स्ट्रक्चर में फॉर्मूला है उसका C6H14, यहाँ पे आपको C6H12 मिलेगा जब ये साइक्लिक हो जाएगा, सैचुरेटेड साइक्लिक हो जाएगा। तब इसके 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे क्योंकि ये एंड के टर्मिनल्स के जो कार्बन्स है वो जुड़ जाते हैं यहाँ पे, राइट, एक बॉन्ड से। और बेंजीन के यहाँ पे तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होने के कारण क्या हो जाता है, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट चेंज द कलर। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होने के कारण क्या हो जाता है कि ये जो बॉन्ड्स है आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करूँ तो इस कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी, लाइक 1 2 3 4 5 बन जाएगी। तो इसीलिए मैं वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं कर सकती, तो इसीलिए मुझे अल्टरनेटिव बॉन्डिंग करनी है क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन्स निकालने हैं। हाइड्रोकार्बन्स के लिए हाइड्रोजन का ऐड होना भी ज़रूरी रहता है, तो इसीलिए अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स रहते हैं और हाइड्रोजन्स 6 यहाँ पे रहते हैं। ओके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर, रिंग स्ट्रक्चर लीनियर और ब्रांच्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द IUPAC नेमिंग फंक्शनल ग्रुप्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड पॉलीमर्स। Okay, polymers is an optional thing for CBSE people, but this is important for SSC state boards. Yeah, thank you.